کوئی اگر داڑھی رکھ بھی رہا ہے چلو ہمارے نبی کی سنت پوری کر رہا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ہم ہر داڑھی والے کو عالم تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ عالم بننے کے لیے بھی نالج ہونی چاہیے, جس کے لیے بہت سارا ٹائم اسپینڈ. کیا ہم ایک عام داڑھی والے کو مولوی صاحب کہہ سکتے نہیں. ہیں؟ اس میں کیا فرق ہے؟ حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ادارہ ٹرو سرونٹس آف اللہ کی طرف سے میں آپ کا میزبان سید خالد یوسف. آج ہم آئے ہیں بٹمالو وہی اپنا سوالات و جوابات کا سلسلہ لے کر. تو عوام الناس سے ہم وہی 4 سوال پوچھیں گے, جو صحیح جواب دے گا اس کو ہم انعام کے طور پر کتاب گفٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے گزارش ہے, ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے. جزاک اللہ. چائے دیکھتے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام حضرت؟ انظر مختار. وعلیکم السلام ورحمۃ بھائی اللہ. جان کیا نام آپ کا؟ حاذق. حاذق بھائی 4 سوال آپ سے پوچھیں گے, بالکل بیسک سوال, صحیح جواب آپ دیجیے, کتاب ملے گی گفٹ. پہلا سوال آپ سے یہ ہے, معراج کے سفر سے پہلے مشہور روایت کے مطابق معراج رجب کے مہینے میں ہوا ہے. معراج کے سفر سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے تھے ایک جگہ پر دعوت دینے کے لیے, مکہ سے باہر. لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت سننے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا برا سلوک کیا, بچوں کو پیچھے لگوایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے گئے, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے. کیا آپ مجھے بتا سکتے وہ کون سی جگہ تھی؟ کیا آئیڈیا؟ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبردست تکلیف آئے. آئیڈیا کیا؟ مکہ سے باہر وہ جگہ. اس سے باہر آپ مجھے بتا سکتے کہ وہ کون سی جگہ ہے؟ کیا مجھے آپ بتا سکتے کہ وہ کون سی جگہ تھی؟ مکہ مدینہ. مکہ سے باہر گئے تھے دعوت دینے کے لیے, مشہور ہے واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زخمی ہو گئے تھے. مدینہ منورہ. تا سے وہ جگہ, تا ہنٹ دوسرے جگہ. جی تا چھو تعلیم بات, ہنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. کیا مجھے بتا سکتے وہ کون سی جگہ تھی؟ طائف. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب. کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کمبائنڈ میں دونوں کی وہ کون سی جگہ تھی؟ اس جگہ کا نام کیا تھا؟ یہ سے کوشش یہ تمس کنہ ون برسان تک جگہ کیا نام پتہ گو تم ہجرت. میں بول رہا ہوں اس جگہ کا نام کیا تھا؟ گو مکہ سے نہ مکہ سے باہر. کیا کیا آئیڈیا؟ کن چلا پتہ کر تم ہجرت. میں بول رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے دعوت دینے کے لیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں برداشت کرنا پڑی وہاں پر معراج کے واقعے سے بالکل پہلے ہی. چلو اس جگہ کا نام تھا طائف. طائف بوزا تھا, طائف اس میں کوئی زبردست تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر, اسی سے اس شہر کا نام آتا ہے. مشہور ہے وہ پلس ٹرس. آئیڈیا؟ اس جگہ کا نام تھا طائف. کیا مجھے بتا سکتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ مکہ سے باہر وہ جگہ ہے. مکہ سے باہر مشہور واقعہ ہے, حضور کے زخمی زبردست پتا پہاڑ. طائف. ہاں اونچا طائف میں. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ. آئیڈیا سے اس کو طائف کہتے ہیں. دوسرا سوال آپ سے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے نا معراج پر, تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص چیز انعام دی, ڈائریکٹ خود ہی پوری امت کے لیے, اس کو جس پر پوری امت اس وقت عمل کر رہی ہے. میں آپ کو ہنٹ دوں گا. 5 جو ارکان ہیں نا, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, انہی 5 میں سے وہ ایک ہے. وہ چیز کیا تھی؟ نماز. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ٹھیک کیا نماز. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب. نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ملی. وہ کون سا انعام ہے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ دیا معراج کے موقع پر؟ ڈائریکٹ وہ 5 سمجھ کچھ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, حضور مدینہ آسمان. کلمہ. دیم ترائی. نماز. بالکل صحیح جواب. نماز ہے وہ. ماشاءاللہ. وہ کون سا ہے؟ نماز. بالکل نماز. واقعہ مشہور, اللہ کے نبی پہلے گئے, پہلے 40 نمازیں تھی, کم کروائی وغیرہ وغیرہ. تو انعام کیا تھا؟ قرآن.
मैं आपको हिंट दूंगा, 5 जो अरकान है ना, कलिमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन्हीं 5 में से वो एक है। वो इनाम क्या है? मैं आपको हिंट दूंगा। इस्लाम के है ना 5 रुकन, कलिमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, रोजा, ज़कात, इन 5 में से वो एक रुकन, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट आसमान पर अल्लाह तबारक फरमाने देगा। वो नमाज है, नमाज नमाज नमाज। मेराज का वाक़ा जो है, नमाज, वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम के तौर पर गिफ्ट मिली। क्या मुझे बता सकते हैं वो कौन सा रुकन है? वो नमाज है। 5 वक्त की नमाज है। तो उम्मत ने नमाज छोड़ दी, मेराज को ले लिया। वो 5 तो मूसा है, यूं थे पढ़ने, फिर वापस वो नमाज थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ने नमाज इनाम के तौर पर गिफ्ट दी। हमने मेराज के वाक़े को याद रखा, लेकिन जो वहाँ पर अल्लाह के नबी को नमाज तोहफे के तौर पर गिफ्ट मिली, वो हमने छोड़ दी है। तीसरा सवाल आप सबसे ये है, सफाई के बारे में इस्लाम क्या हुक्म करता है? नस्ब ईमान, सफाई च नस्ब ईमान, उर्दू पढ़, सफाई नस्ब ईमान है। सफाई बिल्कुल जरूरी है। सफाई हाँ जरूरी है नमाज के लिए। वज़ू ज़रूर समझते हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है। इंसान जब नमाज पढ़ता है तो वज़ू ज़रूरी करना पड़ता है, इस तरह कपड़े पाक होने चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए वगैरह, ये बहुत है। कपड़े भी पाक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा सवाल अब आपसे ये है कि सफाई के बारे में इस्लाम क्या हुक्म करता है? सफाई के बारे में इस्लाम हुक्म करता है इंसान को साफ रहना चाहिए, कपड़े भी साफ होना चाहिए, और सफाई नस्ब ईमान है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तीसरा सवाल अब आपसे ये है कि सफाई के बारे में इस्लाम क्या हुक्म करता है? सफाई नस्ब ईमान है। माशाअल्लाह, सफाई नस्ब ईमान, हाँ। बावजूद मुसलमान रहना चाहिए, कपड़े पाक होने चाहिए, गंदे कपड़े मुसलमान को घूमना चाहिए। तीसरा सवाल आपसे ये है कि सफाई के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है? सफाई ईमान है। माशाअल्लाह, सफाई ईमान, थोड़ा झूठ मत बोलिए। सफाई ईमान है। नमाज के लिए वज़ू करना पड़ता है वगैरह वगैरह बना, सही है, नमाज के लिए वज़ू करना पड़ता है। यानी पाकी बहुत ज़रूरी है, कपड़े पाक होना, जिस्म का पाक होना, बागुस्ल रहना। अगर किसी को गुस्ल का तकाजा हो जाए तो उसको गुस्ल ज़रूरी करना है, मतलब बेगुस्ल नहीं घूमना है, अल्लाह ताला बचाए। चलिए भाई, तीसरा सवाल आपसे है कि सफाई जो है, सफाई बहुत ज़रूरी है ना? इस्लाम का इसके बारे में क्या हुक्म है? जो ये जो सफाई है वो निसफ ईमान है। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो हम कहाँ ईमान मतलब मोमिन बनेंगे। सबसे पहले हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ किया गया, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सफाई रखनी चाहिए, तो तभी हम नमाज भी अदा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फ़राइज़ हैं, जो कि मुँह धोना है, वो सब सफाई में आता है। तो इसीलिए हमें जो सफाई का बहुत अहम रोल है ईमान। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, माशाल्लाह, बहुत सही जवाब है। तीसरा सवाल अब आपसे है, सफाई के बारे में इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है? सफाई कितनी ज़रूरी है इस्लाम में? बहुत ज़रूरी। थोड़ा इलाबरेट। माशाल्लाह, नमाज वज़ू करना, बिल्कुल हाँ, बहुत ज़रूरी है। जिस हदीस पाक में आया है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का एक हिस्सा है। इसी तरह अत्तहुरु निस्फुल ईमान, पाकी नमाज का निस्फ ईमान है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मुद्दस्सिर में भी फरमाया गया, वसियाबका फत्तहिर, कि आप अपने कपड़ों को भी पाक रखा करें। तो बहरहाल चौथा सवाल आपसे ये है कि एक मौलवी साहब या आलिम साहब जो होते हैं हमारे पास, क्या हम एक आम दाढ़ी वाले को मौलवी साहब कह सकते हैं? जी नहीं। क्या फ़र्क है? जब जी क्या फ़र्क है आलिम और मौलवी साहब? बहुत सारा फर्क है। हाँ, थोड़ा इलाबरेट। बहुत सारा। अपने दाढ़ी वाले तो हम भी दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन अपने अपने अमल नहीं है तो मौलवी साहब कैसे कहते हैं? मौलवी बनने के लिए इंसान को एक डिग्री हासिल करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर जाके वो एक मौलवी बनता है। एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, बिल्कुल एक टाइम देना पड़ता है उसको। ठीक है सतन, जज़ाकल्लाह खैर। बोला छोटो वजूद के किताब है, गिफ्ट सॉरी तरह से अल्लाह ये वाली इसको दुआ कीजिए। चौथा सवाल आपसे ये है कि मौलवी और आलिम, मौलवी या आलिम दोनों एक ही है, इसमें और क्या एक आम दाढ़ी वाले में कोई फर्क है? क्या आम दाढ़ी वाले को मौलवी कह सकते हैं?
बराबर शाबाश थोड़ा आलिम जितना जानता होता है उतना मौलवी नहीं जानेगा ना मौलवी अलग आम दाढ़ी आम ना आम रेशे को मौलवी साहब बने हमारे यहाँ ना आदत किसी लंबी दाढ़ी को दिखे मौलवी साहब मैं यही कह रहा हूँ कि मौलवी जैसा आपने कहा कि मौलवी और दाढ़ी वाले में बहुत फ़र्क है जिस तरह हर काला कोट पहनने वाले को हम वकील नहीं कह सकते हर सफ़ेद कोट पहनने वाले को डॉक्टर नहीं कह सकते इसी तरह हर दाढ़ी रखने वाले को हम आलिम नहीं इसके लिए एक बिल्कुल कोर्स करना पड़ता है मुस्तनद उलमा के नज़दीक इम्तिहान देना पड़ता है चलिए माशाल्लाह जो किताब वाला दुआ करिए चौथा सवाल आपसे है माशाल्लाह आपने टाइम अपना दिया एक आलिम और मौलवी है ना आलिम कहते हैं किसी को मौलवी साहब कहते हैं क्या हम एक आम दाढ़ी वाले को कह सकते हैं मौलवी साहब नहीं यस क्या फ़र्क है इसमें आम दाढ़ी वाले और मौलवी में फर्क से ये फर्क है यही है कि जो मौलवी है उसके पास इल्म होता है दीन का जो आम होता है वो नमाजी होता है उसके पास है या नहीं ये पता नहीं है फिलहाल जो हमारी नज़र में मौलवी साहब है उनके पास होता है इल्म कुरान होता है उनके पास बाकी चीज़ें यानी उनको एक मुस्तनद एग्जाम पहले देने पड़ते हैं बहुत साल लगाने पड़ते हैं इल्म हासिल करने के लिए तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है दाढ़ी वाला किसी को मौलवी साहब देखिए ठीक अगर ये भाई सफ़ेद कोट पहनेगा तो इसको हम डॉक्टर नहीं कह सकते अगर ये काला कोट पहन सकता है इसको हम वकील नहीं कह सकते इसी तरह हम हर दाढ़ी वाले को मौलवी कुछ नहीं कह सकते हैं चलो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर बोला छोटू दुआ कीजिएगा हज़रत चलिए भाई चौथा सवाल अब आपसे ही है क्या हम एक आम दाढ़ी वाले को मौलवी साहब कह सकते नहीं इसमें क्या फर्क है थोड़ा इलाबरेट कीजिए मौलवी साहब को क्या फर्क कैसे मौलवी बनते हैं मैंने आपसे पूछा कि हम किसी भी ये बेचारा दाढ़ी वाला है दाढ़ी रखनी मुसलमान के ऊपर जरूरी है हम उसको कह सकते हैं भाई मौलवी साहब यानी मौलवी बनने के लिए इंसान को हाँ मेहनत करनी पड़ती है एग्जाम देना हाँ तब जाके इंसान मौलवी बनता है एग्जाम देना पड़ता है जय्यद उलमा के पास पढ़ना पड़ता है अगर मदरसे में ज़रूरी जाना पड़ता है अगर नहीं मदरसे गए तो उलमा के पास सोहबत इख्तियार करनी पड़ती है उनकी सरबराही के अंदर पढ़ना पड़ता है जज़ाकल्लाह खैर बोला अब आखिरी सवाल आपसे क्या मौलवी और आलिम ये एक ही है मौलवी या आलिम क्या हम हर दाढ़ी वाले को मौलवी आलिम कह सकते हैं रास्ते में किसी को देखा हमने लंबी दाढ़ी है ये मौलवी इसको हम मौलवी साहब कह सकते हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं थोड़ा इलाबरेट करो फर्क क्या है देखो जो आलिम होता है तो उसके पास नॉलेज होती है उसने बहुत टाइम स्पेंड किया है डिग्री की है बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं बट अगर कोई ऐसे ही रख लेता है दाढ़ी तो ऐसे हम कहाँ कैसे कह सकते हैं कि वो आलिम है जिस तरह कोई सफेद कोट पहनता है उसको हम डॉक्टर नहीं कह कोई सकते अगर दाढ़ी रख भी रहा है चलो हमारे नबी की सुन्नत पूरी कर रहा है कोई बुरी बात नहीं है लेकिन हम हर दाढ़ी वाले को आलिम तो नहीं कह सकते क्योंकि आलिम बनने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए जिसके लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है तो इसीलिए जज़ाकल्लाह खैर जो छोड़ो गिफ्ट है आपका बहुत शुक्रिया दुआ कर माशाल्लाह चौथा सवाल अब आपसे है क्या हम एक किसी भी आम दाढ़ी वाले को मौलवी कह सकते हैं मौलवी साहब नहीं कह सकते मौलवी बनने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है टाइम देना पड़ता है वगैरह वगैरह एग्जाम देने पड़ते हैं जज़ाकल्लाह